Hello students, our next topic is moving coil galvanometer. Now what is a galvanometer? Galvanometer is an instrument which detects the current, or which indicates the current if there is a current in the circuit or not. Okay, so galvanometer is a device which detects the current. It not measure. Is measurement of current is done by the ammeter. It only detects कि there is a current in the circuit or not. Now moving coil galvanometer, that as the galvanometer you use in the laboratory, जो आप laboratory में physics laboratory में use करते हो galvanometer का, वही चीज है. We are studying their internal part. Okay, we are studying their internal part. So this is the diagram of the moving coil galvanometer. Just try to understand what are the parts and how it works. Okay, so this is the moving coil galvanometer in which you have two magnets, north pole and south pole. These are the permanent magnets, north pole and south pole. Okay, and they are radially. Okay, ये जो है इस तरह से concave shape में है, and they are providing the radial magnetic field. Now we will study what is the use of radial magnetic field. So they will provide the radial magnetic field. Now this is a soft iron core. Here it is written the soft iron core. The soft iron core is placed as it is like a cylinder, and it is placed in between the magnets के बीच में रखा हुआ है. ठीक है, and this is a rectangular coil. Okay, ये जो है ये क्या है, एक rectangular coil है. This is the rectangular coil है of the insulated copper wire. ठीक है, एक rectangular coil है, बहुत सारे वायर्स है जो कि rectangular shape में है, और ये insulated copper wire की बनी है जो कि it is wound on the soft iron core. Soft iron core पे क्या है, wound है. Okay, and then you have this, there is the one wire. This wire, हाँ, ये वायर जो होता है phosphor bronze. Okay, ये वाला जो वायर है, ये वाला और ये वाला, these two wire are made up of phosphor bronze wire. Okay, इसका हमारे स्पेसिफिक रीजन है कि हमने ये वायर क्यों यूज करा है, that we will see. So that phosphor bronze wire we have used. We can also use the spring. हम यहाँ पे अगर ये वायर की जगह हम स्प्रिंग भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. We can also use the spring, but it should be made up of phosphorus bronze wire. Okay, so these are two wires, phosphorus bronze wire, upside and downside, and they are connected to the two fixed leveling screws. ये जो है leveling screw है, fixed leveling screw है L2 and this L1. इससे दोनों क्या है, बंधे हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये है pointer. The pointer will move as the current will come. The pointer will move in either direction. So this is the pointer, and it will make the angle theta. Theta नहीं phi लिया हमने. So it will make the angle phi with the phosphor bronze wire. वायर के साथ ये एंगल, जब ये स्ट्रेट है तो एंगल बनाएगा 0 डिग्री. नॉर्मल में ये जो रहता है, ये वायर, ये जो पॉइंटर होता है, ये स्ट्रेट होता है जब कोई भी करंट नहीं आता है. And when the current comes, it moves in either direction, making the angle phi. Okay, making the angle phi. Okay, and this is the pointer, and this is the scale. This is the scale where the deflection are seen. Okay, so these are the parts of the moving coil galvanometer. Okay, now what is its principle? What is the principle of moving coil galvanometer? The principle of moving coil galvanometer is that when a current carrying conductor or where a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experience a torque. इससे पहले हमने स्लाइड्स में देखा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल रोटेट्स. कॉइल जो होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, so these are the parts. This you can see, this you can write in the construction. Okay, moving coil galvanometer is a very important topic. It always come in the exam, so it can come like this. Write the principle, construction and working of the moving coil galvanometer. Okay, so this you can write the construction whatever parts we have taken, and the diagram. आप diagram बना सकते हो और इसमें इसके parts जो है उनको लिखना है. Then you have the work principle मैंने आपको बताया, and then the working. Okay, working में हम देखेंगे किस तरह से work करता है. Okay, now what happens as the current comes. Okay, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट रहता है, बैटरी कनेक्ट रहती है जिससे करंट जो होता है इसमें आता है. And when the current comes, what happens?
there in the current comes in this coil. ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके दो पोल से, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें जैसे ही करंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड देयर कम्स अ करंट। इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, जो कि यहाँ से यहाँ इस तरफ से, जैसे मान लीजिए आपका ए बी सी एंड डी, so current will flow from A to B, B to C, C to D, and then from here. Now as the current comes, they are experience a torque. यहाँ पे फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इधर भी फोर्स लगेगी, और वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगी, so they are acting a torque. Direction of force we can calculate by using Fleming left hand rule. So what will happen, they are acting a torque. Torque यहाँ पे लगेगा, और टॉर्क लगने के कारण ये कॉइल जो होगी वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब जैसे ये कॉइल जो होगी ये रोटेट करेगी, इसके साथ ये सिलेंडर भी है, रोटेट करेगा, द सिलेंडर विल आल्सो रोटेट। अब अगर सिलेंडर रोटेट करेगा तो इसके साथ ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है ये भी रोटेट करेंगे, दे विल आल्सो रोटेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ एक्टिंग अ टॉर्क, ओके। सो लेट अस जस्ट वी राइट सम points here. So when a current comes in the coil, they are acting. This I am writing the working, okay. Principle and construction you have to write. I am writing the working. So when a current comes in the coil, they are acting a deflection torque. Now what is this deflection torque? हमने फॉर्मूला इसके पहले टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज NIAB sin थीटा, ओके। N is the number of turns, total number of turns कितने हैं, I is the current, A is the area of the rectangular coil, B is the magnetic field, and theta is the angle between the magnetic field and the area, ठीक है। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A एरिया है, और B मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दिस फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्लाइड, ओके। सो इसमें क्या होगा, दे आर एक्टिंग अ डिफ्लेक्शन टॉर्क, ओके। सो द कॉइल रोटेट with the rotation of soft iron core cylinder, तो कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर जो सिलेंडर है ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ओके। नाउ एज द कॉइल रोटेट, the phosphor bronze wire also rotate. अब जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। नाउ ड्यू टू द रोटेशन इन द वायर एंड द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर हैज सम इट्स इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी दे आर एक्टिंग अ रीस्टोरिंग फोर्स। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस वायर में रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी, ओके। एंड ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स अ काउंटर टॉर्क विल एक्ट विच अपोजेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो क्या होगा, इसमें एक काउंटर टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा, ओके। सो phosphorus bonds also rotate due to elasticity of wire. Due to elasticity of wire, it produces
a counter torque which is tau, which is proportional to phi. Which is proportional to phi. Okay. Where phi is the angle of diffraction. Where phi is angle of deflection. So this torque is proportional to phi. अब यहाँ पे जो टॉर्क है काउंटर टॉर्क, दिस इज द काउंटर टॉर्क. ओके, तो ये जो टॉर्क है इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो आपका टॉर्क था दैट इज NIAB sin थीटा, और ये काउंटर टॉर्क लग रहा है सॉरी दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई. जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर जितना ज्यादा मूव करेगा. अब पॉइंटर कब ज्यादा मूव करेगा? जब ये जो आपकी कॉइल है वो ज्यादा रोटेट करेगी. कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी, डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा होगा यहाँ पे. तो यहाँ पर फाई जितना ज्यादा होगा काउंटर टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा. जैसे आप रबर को स्ट्रेच करते हो तो रबर को आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करते जाते हो उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो बढ़ते जाता है. रिस्टोरिंग टॉर्क इंक्रीज. ठीक है, आपने स्ट्रेच स्ट्रेंथ पढ़ा है 11th में, आपको अच्छी तरह से मालूम है. तो यहाँ पर जैसे जैसे फाई इंक्रीज होगा ये जो है काउंटर टॉर्क बढ़ेगा. अब हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर क्यों यूज करा है? क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन. ठीक है, हम ऐसा वायर यूज करेंगे जो जिसकी प्रोपोर्शनलिटी जो होगी, जिसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा या रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस काउंटर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, या रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई. हम अगर आयरन वायर लेते हैं या कॉपर वायर लेते हैं तो हमें उतना इलास्टिसिटी नहीं मिलती जितने कि हमें इस वायर में मिलेगी. तो हमने इसीलिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर जो है यहाँ पे यूज करा है. ओके, तो दैट इज टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई and we will put a constant that is K phi. Now K is a constant. That constant K is known as the torsional constant. TORSIONA. यहाँ पे जो होगा that is torsional constant. ओके, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों जो टॉर्क होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन both torque are equal. तो दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे. so that will be equal to NIAB. okay, that is equal to K phi. अब यहाँ पे हमने जो थीटा है उसको आपने 90 डिग्री माना है. अब थीटा जो होगा या हमेशा जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी थीटा आपका चेंज नहीं होगा. द थीटा विल नॉट बी चेंज, द थीटा विल रिमेन कांस्टेंट. एंड हाउ यू कैन मेक द थीटा टू बी रिमेन्स कांस्टेंट? बाय अप्लाइंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, थीटा क्या है यहाँ पे? इसमें एरिया के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है. अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, एज द कॉइल रोटेट द थीटा विल रिमेन constant, the theta will remain 90 degree, and that is possible only when you are having the radial magnetic field. अगर आप प्लेन मैग्नेट्स यूज करोगे तो हो सकता है उसमें थीटा जो हो जाए वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए. the theta will be changed, but applying the radial magnetic field the theta will not be changed and you will get the maximum magnetic field. okay, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है why we uses the radial magnetic field in case of the moving coil galvanometer? so to make the angle, इसका आंसर आप लिखेंगे to make the angle 90 degree, so that will give the maximum magnetic field. okay, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया. अब यहाँ से आप NAB और ये जो K है इसको आप नीचे ले आएंगे और I को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू. अब यहाँ पे आप देखिए N इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है कांस्टेंट है, तो इसको हम एक रिप्रेजेंट लेंगे GI इक्वल टू y, वेयर G इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट.
जी यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है इसको एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज जी। सो जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जी इज कांस्टेंट, तो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी से लिख सकते हैं। सो दैट मीन phi will be proportional to, yeah, I will be proportional to phi. Okay, this is the main thing that you have to, तो यहाँ पे जो phi होगा वो किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I के। देखिए g कांस्टेंट हो गया तो I कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू phi। तो यहाँ पे ये चीज क्या बता रही है कि डिफ्लेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट आएगा, जितना करंट आएगा उतना ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ज्यादा करंट आ रहा है ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट आ रहा है कम डिफ्लेक्शन होगा। तो दैट मीन्स हियर द डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन phi is directly proportional to, is directly proportional to amount of current. This is the main point of the galvanometer. The amount, the angle phi, the angle of deflection is directly proportional to the amount of current I. Okay, amount of current. तो ये क्वेश्चन, इसको इस तरह से प्रूफ दे सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरह से आया भी ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर the angle of deflection is directly proportional to the amount of current or to the magnitude of the current or the amount of current passing through it. Okay, तो इस टाइप का क्वेश्चन है भी आप इस तरह से भी पूछते हैं। तो दिस इज नोन एज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज द वर्किंग। अगर वर्किंग में आप थ्योरी भी लिखेंगे और ये पूरा जो आपका डेरिवेशन है और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ तक आप इसको प्रूव करेंगे। भले ये पूछा ना हो कि प्रोपोर्शनलिटी आपको पूछी ना हो, आपको सिर्फ ये पूछा हो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल आपको लिखना ही है, वर्किंग में ये पूरा लिखेंगे और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, सो दिस इज नोन एज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।